a remarkable young aspirant who has achieved 98% in her board exams and made proud not just the family but entire district of Kathua. She is the daughter of Kathua, and I would love to tell you that she has not done just good in her academics but other fields also. She has written more than 60 plus articles in regional and national newspapers. She has also attended many of annual events, and she has also served as head girl of her school, and right now she is a part of Devi Duggar Association and serving as media head there. So please welcome her with a huge round of applause. I would also like to welcome our chairman sir and our vice principal Daman ma'am for sharing this place with us. Thank you so much. Now I would like to call Daman ma'am to share her words with us. Very good morning to Chairman sir, our today's guest and all the students. It's good to see one of the eminent guests here with us today, Ms. Tashi, who has recently cleared her treacherous exams and she has scored 98% mark. Not going further, her achievements are already discussed by you, right? So today we are here to know how she has achieved her milestone, and I hope that you will grab this opportunity with all your open hands. And once again, I would like to welcome Ms. Tashi on the behalf of this Qatar Public School. Welcome once again. I request you to please join us on the stage, and I hope we'll have a healthy conversation. आप यहाँ पे हैं, तो you have to interact with her. इनके साथ बात करें, right? आपकी जो भी queries है because and 12 and what path you people have to follow. आपको इनसे guidance लेनी है, इनको अपना inspiration बनाना है because she is just 2 to 3 years elder than you and she has achieved so much till now. आपने कभी आर्टिकल लिखा है? Have you written article? कभी किसी न्यूज़पेपर के लिए नहीं, but right she is standing here and she has already written 60 articles, right? So I want you people to make her as your inspiration and take away good things from her by having a healthy interaction with her. Okay? So let's begin this. Thank you so much, ma'am. Once again, thank you so much for joining us today. Thank you. My pleasure. You can use that mic. Okay. Coming from a close-knit family, she has beautifully balanced academics, leadership, social work, and creativity. Now, let's begin an inspiring conversation with her. Tashi, once again, congratulations and thank you so much for joining us today. So, every journey has a start. Can you please take us back to your nursery classes and tell us what kind of student you were in those days? So, before I come to the question, I would like to thank the entire Qatar Public School administration, our honorable chairman sir, our principal ma'am, vice principal ma'am, and our respected ma'am who's sitting just beside me, to give me this opportunity to interact with each one of you. I'm just 1 or 2 years older than all of you, and it's not a very big deed that I've done so far. But yes, as a student, I would want to share my views and my journey with all of you, so that आपको भी ऐसे लगे कि आप में से ही एक निकला हुआ बच्चा
अगर अपनी लाइफ में, अपनी जर्नी में कुछ थोड़ा बहुत भी माइलस्टोन अचीव कर सकता है, सो व्हाई नॉट ईच वन ऑफ यू. सो नाउ कमिंग टू क्वेश्चन, एज मैम सेड दैट कि आपकी जर्नी कैसी थी, हाउ डिड यू स्टार्ट. So I was a very underconfident child initially. The mic is not working. You can use Yes. So I was a very underconfident child initially. But yes, I would want to give all this credit to my parents. मेरे मम्मा पापा ने मुझे बहुत encourage करा. मेरी participation in school events and all wasn't that much. But my mother ensured कि मैं हर एक event में participate करूं. चाहे वो art and craft के regarding है, speaking के regarding है, even theater, acting, हर एक चीज में I try my hands on. And later on जब मैं बड़ी हो जाऊं, so then I choose my genre कि मेरा कौन सा field है किसमें मैं best कर सकती हूँ. So my mother made sure कि अगर मेरा मन नहीं भी है तो भी I participate in events. तो प्राइमरी स्कूलिंग में तो ऐसा था that it was all credited to my mother and father. उन्होंने ही encourage करा. कई बार मैं रोते रोते भी जाती थी that मुझे नहीं करना ये इवेंट या मुझे नहीं करनी है पार्टिसिपेशन, बट माई मदर मेड श्योर दैट आई मार्क माई प्रेजेंस देयर. एंड यस, आप लोगों के लिए भी एक ये बहुत बड़ी सीख है दैट जब भी हम कोई इवेंट कर रहे हैं, कॉम्पिटिशन्स बहुत सारे होते रहते हैं केपीएस में भी, तो अगर आप कोई कॉम्पिटिशन का पार्ट है, सो डोंट बी पार्ट ऑफ दैट कॉम्पिटिशन कि हमें जीतना है, हमें फर्स्ट आना है, सेकंड आना है. यस, दैट इज अ मोटिवेशन, लेकिन हमें पार्टिसिपेशन करनी है बिकॉज हमें कुछ सीखना है. सो दैट शुड बी द इनिशियल ग्राउंड. एंड मेरे मदर ने भी मेरी पार्टिसिपेशन ऐसे ही स्टार्ट करवाई एंड शी वॉज द वन हु टॉट मी टिल क्लास 3rd और 4th. एंड उसके बाद जब एक बार हम सेटल हो जाते हैं तो देन लेटर ऑन हम सब चीजों को खुद कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं. लेकिन हाँ, एक इनिशिएशन बहुत जरूरी है. और ऐसा नहीं है कि अगर मैंने प्री प्राइमरी में स्टार्ट किया तो आप अब नहीं कर सकते. अगर आप में से बहुत सारे बच्चों ने नहीं करी है पार्टिसिपेशन, या आप में से बहुत सारे बच्चे अभी भी ये सोचते हैं कि नहीं हमें अंडर कॉन्फिडेंट फील हो रहा है या वी आर शाय, तो ठीक है, दिस नो पर्टिकुलर एज लिमिट कि हमें ये चीज इस एज तक अचीव करनी है. हाँ, वो सोसाइटी के पैरामीटर्स जरूर है, लेकिन हम जब भी स्टार्ट करें, वो कहते हैं ना जब जागो तभी सवेरा. सो दैट इज व्हाट रियली इम्प्लाइज हियर. सो दैट्स ऑल आई वांट टू से. थैंक यू. Thank you, Kashi. So, when did you first realize that academics was something you genuinely enjoyed? Okay, so I would say that I was always placed in academics. मतलब I was performing good in school and all. But it was grade 8th और 9th जब मुझे लगा like yes, academics is my calling. And मैं सिर्फ अपने स्कूल के एग्जाम्स ही नहीं, उसके अलावा भी अकेडमिया फील्ड में काफी कुछ कर सकती हूँ. सो 9th ग्रेड वाज दैट जब सेल्फ कॉन्शियसनेस आया कि ठीक है, एग्जाम्स तो अपने देने हैं, पढ़ना है अच्छे से, एग्जाम्स लिखने हैं, मार्क्स लेने हैं, दैट इज फाइन. बट अदर देन दैट academics हैज so much to offer beyond writing that one final exam या unit test जो भी हम देते हैं. So that calling, मैं बोलूंगी all in all मेरी फैमिली का उसमें क्रेडिट है. And then I have a couple of role models जिनसे मैं इंस्पायर हुई. So that is what I would want to say कि secondary classes में academia calling I got more. Okay. Was there any teacher or family member who has played a significant role in shaping your career? Okay, so first of all, my family has always been very supportive. मतलब मेरे पेरेंट्स ने मुझे हर चीज के लिए अच्छा गाइड करा है. एंड टीचर्स के लिए भी आई वुड वांट टू क्रेडिट कि मेरे टीचर्स के साथ भी काफी अच्छी इक्वेशन थी एंड दे गाइडेड मी एट ईच स्टेप इन माय लाइफ. एंड टीचर्स एंड फैमिली तो आपको गाइड करते ही हैं. उसके अलावा इफ आई टॉक अबाउट अ रोल मॉडल, सो हाउ मेनी ऑफ यू वॉच न्यूज रेगुलरली? कितने बच्चे देखते हैं? एनी वन ऑफ यू नो मिस पलकी शर्मा उपाध्याय? Okay, so this is your homework now. आप घर जाके सर्च करेंगे पलकी शर्मा. She is a journalist and she speaks so well. Geopolitics and international affairs वो usually cover करते हैं. So I basically saw a podcast of hers जिसमें उन्होंने बताया था कि किस तरीके से उन्होंने कॉलेज डेज में राइटिंग स्टार्ट करी. So now she is like very much older than me. वो मेरे फादर की एज के ही हैं. She is 40+. So, उनके टाइम में ईमेल एंड ऑल इतना एक्सेसिबल नहीं था कि एडिटर्स को आर्टिकल्स मेल कर दो या कॉल करके आप भेज दो, या कोई व्हाट्सएप नहीं था. so, उस समय ईमेल साइबर कैफे से करानी पड़ती थी या फिर आप रिटन पीसेस को पोस्ट करते थे. सो शी सेड इन वन ऑफ हर पॉडकास्ट कि उन्होंने कॉलेज डेज से स्टार्ट करा था
ऐसे randomly, do you know this concept of cold calling or cold mailing? It is that कि suppose अगर मैं मैम को जानती हूँ और मैम की कोई पब्लिकेशन है, मुझे वहां पे कुछ प्रिंट करवाना है, तो फिर तो मैं मैम को बोल दूंगी कि मैम वुड यू डू मी अ फेवर. बट अगर मैं मैम को नहीं जानती हूँ, बट आई गॉट हर एड्रेस, मुझे उनका पता चल गया फोन नंबर, सो आई वुड रिक्वेस्ट हर, मैं अनोनिमसली उनको रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि मैम दिस इज माई वर्क, वुड यू लाइक टू पब्लिश इट. अब उसमें हाई चांसेस है कि वो रिजेक्ट हो जाए, हाई चांसेस है वो एक्सेप्ट हो जाए. तो उसमें आपकी एक्सेप्टेंस की पॉसिबिलिटी चाहे कम है, बट इफ यू गेट इन टू इट, सो दैट्स अ विन विन. तो उस तरीके से उन्होंने बताया था कि कोल्ड मेलिंग उन्होंने स्टार्ट करी थी, मतलब वो पोस्ट करती थी अपने आर्टिकल द्वारा. तो वहां से मेरे दिमाग में स्ट्राइक हुआ कि विद दैट लिमिटेड रिसोर्स, जब इतना इंटरनेट नहीं था, इतना एक्सेस नहीं था, अगर वो तब ये चीज कर सकती है, सो व्हाई नॉट आई कैन डू. सो दैट वाज माय इनिशिएशन फॉर राइटिंग फॉर रीजनल डेलीज. मैंने एक पीस लिखा, आई डिडंट इवन टेल माय फैमिली कि ऐसा ऐसा मैंने कुछ मेल करा हुआ है, एंड व्हेन इट गॉट पब्लिश्ड, सो देन आई टोल्ड माय फैमिली. सो दैट वाज समथिंग आउट ऑफ लाइक माय सर्कल. जो पेरेंट्स है, फैमिली है, टीचर्स है, दे गाइड यू द बेस्ट, बट उसके अलावा इफ यू हैव अ रोल मॉडल जिनसे आप कुछ सीख सकते हैं, सो दैट्स ऑलवेज ग्रेट. Kashi, securing 98 is an extraordinary achievement. What did your daily routine in class 12 look like? So first of all, I would say that as ma'am addressed that securing 98% is an extraordinary achievement. अगर आप consistent हैं, so it's a very ordinary achievement. All of you can do this very easily. So I would say कि आजकल ट्रेंड बन चुका है स्कूल ना जाना. बच्चे सोचते हैं कि हम घर में पढ़ लेंगे. So that is very wrong. It's very important to come to school daily. हाँ, कभी कभार आप हो सकते हो absent, that is absolutely fine. लेकिन जो एक ट्रेंड्स बन चुके हैं कि कोचिंग जाना है इसीलिए हम स्कूल नहीं जाएंगे, सो दैट इज टोटली लाइक वर्थलेस. स्कूल जाने से फर्स्ट ऑफ ऑल तो एक टाइम टेबल में इंसान बनता है. यू नो दैट कि मेरा 40 मिनट का मैथ्स का पीरियड होगा, 40 मिनट का इंग्लिश का होगा, चाहे मन है मैथ्स पढ़ने का या नहीं है, यू वुड स्टडी इन दैट टाइम. सो एक तो आप टाइम टेबल में बाउंड हो जाओगे. सेकेंडली आपका एक पूरा रूटीन बन जाएगा दैट ओके यू आर वेकिंग अप एट 6, यू कमिंग बैक एट 3-4, तो आपका वो एक पूरा टाइम सेटल्ड है. प्लस स्कूल सिर्फ एकेडमिक्स ऑफर नहीं करता है, दिस सो मच बियॉन्ड. आज हम ये इंटरेक्शन कर रहे हैं, हो सकता है कि मैंने 10 बातें बोली, उसमें से अगर आप एक भी लाइफ में इंप्लीमेंट कर सकते हो, तो दैट कुड बी ग्रेट फॉर यू. इसके अलावा इतने सारे इवेंट्स हो रहे हैं, इंटरेक्शंस हो रही हैं, सोशल बेस बन रहा है. सो स्कूल इज वेरी इंपॉर्टेंट. फर्स्टली स्कूल इज नॉट गोइंग टू स्कूल इज समथिंग नॉट एक्सेप्टेबल. मैं रेगुलरली स्कूल जाती थी एंड मेरे जो पीयर्स थे, जो मेरे कंटेम्प्रेरी स्टूडेंट्स थे, बहुत सारे जो नहीं आते थे, दे यूज्ड टू से कि स्कूल आने से टाइम वेस्ट होता है, टाइम वेस्ट होता है. नहीं होता है. यू जस्ट डोंट हैव टू डू योर एकेडमिक्स, उसके बियॉन्ड भी आपको काफी कुछ करना है. स्कूल इज अ इनिशियल प्लेटफॉर्म. जिन्होंने करिकुलम बनाया है, सिलेबस बनाया है, उन्होंने कुछ सोच समझ के बनाया है. सो स्किपिंग स्कूल इज नॉट एन ऑप्शन फर्स्टली. सेकेंड इज इवन आई वुड से कि डिसिप्लिन में मुझे स्कूल नहीं लाया. अदरवाइज रात को अगर लेट तक पढ़ रहे हैं तो सुबह 9 बजे उठ रहे हैं एंड ऑल ऑफ दैट. सो दैट इज समथिंग रॉन्ग. I would say wrong at my part also. But then you also have to see कि आप early bird हो या night owl हो, उस हिसाब से you can adjust your time. Being early bird is always great. मैं personally night owl हूँ and मैं correct करना चाहती हूँ, but अब वो schedule ऐसा बन चुका है, biological clock ऐसी बन चुकी है that it's very difficult to get into zone of waking up early and then studying. तो सबसे पहले तो स्कूल जाना है रेगुलरली. सेकेंडली यू हैव टू सी कि आप किस टाइम पे सबसे ज्यादा प्रोडक्टिव होते हैं. सो अकॉर्डिंगली आपको सिटिंग बनानी है. थर्डली मैं पर्सनली अपना बताऊं, इट मे वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, लेकिन मेरे लिए ऐसा नहीं है कि 1 घंटा पढ़ना है या 2 घंटे पढ़ना है. इट इज लाइक कि मुझे ये एक चैप्टर करना है, अब उसको चाहे 1 घंटा लगे या 5 घंटे लगे, दैट टोटली डिपेंड्स कि मैं उसको कितनी देर में खत्म कर लेती हूँ. सो दैट इज व्हाट आई डिड. एंड रही बात स्कूल, आपको एकेडमिक्स में तो अच्छे से यूनिट टेस्ट करा रहा है, ओरल टेस्ट हो रहे हैं, सो मेनी थिंग्स हैपनिंग, तो उसके लिए तो यू डोंट हैव टू वरी. बट हाँ, आई वुड से दैट अपनी रूटीन में एकेडमिक्स में भी एक्स्ट्रा चीजें डालें, लाइक डू एमसीक्यूज, सॉल्व सैम्पल पेपर्स एंड ऑल ऑफ दैट. सो दैट कुड रियली हेल्प इन लॉन्ग रन. थैंक यू. Kashi, were there moments when you felt stressed or depressed? How did you overcome that? Okay, so this is a great question. Firstly, अगर आप consistent चलेंगे, so you would not feel stressed about studies. लेकिन हाँ, मैं पर्सनली बताऊं तो मेरा theoretical subjects में ज्यादा कमांड है as compared to practical subjects. So I remember this one time when I had trigonometry
का test in school. So how many of you hate maths? अरे सब आ रहे बेटा यहाँ. Don't hesitate. Okay, I hate maths. Be free to tell. You can raise your hand. हाँ, कितने सारे हैं? So it is always like कि आपको कोई सब्जेक्ट अच्छा लगेगा एंड कोई नहीं लगेगा एंड इट इज एब्सोल्युटली फाइन. सारे सब्जेक्ट्स के लिए आपका सेम लेवल प्लेइंग फील्ड कभी भी नहीं होगा. इट इज एब्सोल्युटली फाइन टू लव वन सब्जेक्ट मोर देन अनदर, बट ऐसा नहीं है कि हम दूसरे को छोड़ ही दे. सो मेरे केस में आई वाज वीकर एट मैथ्स. मतलब वीकर का मतलब ये है कि अगर मैं इंग्लिश में एक चैप्टर सपोज 1 आवर में कर रही हूँ एंड आई एम लाइक आई नो कि अगर मैंने ये कर लिया है तो आई एम गोना सिक्योर 30 आउट ऑफ 30. तो मैथ्स में ऐसा नहीं था. मैथ्स में मुझे वो एक की जगह 4 घंटे लग जाते थे. तो ट्रिग्नोमेट्री का टेस्ट था एंड आई फेल्ट सो स्ट्रेस्ड एंड आई क्राइड एंड आई वाज लाइक कि अब बोर्ड जाने वाले हैं, मेरे को नहीं आता है. एंड देन माय फैमिली केम इनटू रेस्क्यू. पापा ने कोई ट्यूटर बुलाई. वैसे तो आई वाजंट टेकिंग एनी कोचिंग या कोई भी ट्यूशन, सेल्फ स्टडी ही मैं करती थी अदर देन स्कूल. बट वो ट्यूटर बुलाया, उन्होंने मेरे कुछ कॉन्सेप्ट्स क्लियर करे एंड दैट अपेरेंटली हेल्प मी. तो आजकल तो इतने सारे रिसोर्सेज हैं. यूट्यूब यू आर हैविंग टीचर्स जो बेस्ट हमारे गाइड स्कूल में अवेलेबल हैं. आप कुछ भी डाउट आता है तो आप वेरी नेक्स्ट डे आप उनसे पूछ सकते हैं. सो दैट इज समथिंग वेरी एक्सेसिबल टू ऑल ऑफ अस इन स्टूडेंट लाइफ. एंड आई वुड से दैट कि अगर आप कंसिस्टेंटली चलेंगे तो स्ट्रेस नहीं होगा, बट स्ट्रेस होना इज ऑल्सो वेरी नॉर्मल बिकॉज आवर एल्डर्स डू हैव रिस्पॉन्सिबिलिटी. उनको अलग टाइप का स्ट्रेस होता है. हमारे लिए तो सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी पढ़ाई करना ही है, तो हमें उसी का स्ट्रेस होता है. एंड इट्स एब्सोल्युटली फाइन टू हैव इट एंड discuss it with your teachers, discuss it with your parents and they'll give you a solution for sure. So ये जो मैंने trigonometry वाला instance share करा, this was like कि मुझे stress था, I shared it with my parents, I got a solution to it. आप अपने teachers and parents से share करेंगे, you will surely get a solution. हमें कई बार लगता है कि generational gap है, हमारी बात हमारे parents, हमारे teachers नहीं समझेंगे, but ऐसा नहीं होता है. वो लोग भी उसी stage से निकल के आए हैं जिस stage में हम लोग हैं, so they definitely understand. So that's what I wanted to share. So Tashi, behind every successful student, there is a family who stands beside them quietly. You belong to a very beautiful, close-knit joint family. How has growing up in such an environment influenced your personality? Okay, so firstly I want to ask all of you, आप में से कितने लोग joint family setups में रहते हैं? So there are a few. So I come from a joint family setup. My grandparents, my parents, my chachu chachi, their children, we all live together. So I would say that कि आजकल की society में joint families काफी कम हो गई हैं. यहाँ पे भी हमने देखा the ratio of students who are living in joint families is very less comparative to those living in small or nuclear ones. So I would say that कि joint family in my case was a blessing indeed. आपको हर एक इंसान से अलग अलग सीखने को मिलता है एंड इट इज लाइक सबकी अपनी अपनी पर्सनालिटीज हैं, सबके अपने अपने एक्सपीरियंसेस हैं एंड ये अक्सर कहा जाता है कि हमें खुद जरूरी नहीं है गलतियां करना, हम दूसरों की गलतियों से भी सीख सकते हैं. सो इट इज अ ब्लेसिंग टू हैव दैट इनिशिएशन स्टार्टिंग फ्रॉम फैमिली कि फैमिली में ही सबके अपने अपने एक्सपीरियंसेस हैं. सो दे आर शेयरिंग डिफरेंट थिंग्स एंड सब बहुत ज्यादा सपोर्टिव हैं. सो आई वुड से दैट कि एक वो जो मॉरल एंड एथिक्स बिल्डिंग है जो कि लाइफ में बहुत जरूरी है. आप कुछ भी करें, अकेडमिक्स में आपके 98 की जगह 95 भी आते हैं, 92 भी आते हैं, इट डजंट मैटर इन लॉन्ग रन. लेकिन अगर आप मॉरली एथिकली स्ट्रांग है, आपकी फाउंडेशन स्ट्रांग है, तो आप चाहे कोई भी करियर ऑप्शन चूज करें, आप कुछ भी करें, यू वुड डू बेस्ट इन इट क्योंकि आपका एक फाउंडेशन अच्छा ले हो चुका है. वो कहते हैं जो अच्छा करता है उसके साथ अच्छा ही होता है इन लॉन्ग रन. सो दैट इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट एंड आई वुड क्रेडिट माई फैमिली फॉर ऑल द एथिक्स एंड मॉरल्स दे हैव गिवन मी. थैंक यू. दिस इज नॉट वर्किंग. So, your father, Mr. Ajay Kumar, is a chartered accountant, and your mother, Mrs. Pooja Sharma, is a teacher. What values have you inherited from each of them? So, it's my honor to be daughter of such like beautiful parents. They're amazing, I would say. So, Mama, Papa, when they see this video, I love you. So, I would want to say that both my parents have played
a very important role in my life so far, and they will continue doing it always and forever. My mother, I'll come to her first. She is a very spiritual lady. एंड उन्होंने मुझे कभी पढ़ाई के लिए, मैं वैसे तो अपने पेरेंट्स और अपनी फैमिली सबके लिए ये चीज कहना चाहूंगी कि दे नेवर फोर्स्ड मी फॉर स्टडीज. अगर मेरे मार्क्स भी आ रहे हैं या नहीं, कभी नहीं भी आए, सो दे नेवर डिड दिस कि ये कम क्यों आए, ज्यादा क्यों आए, नेवर. व्हेन आई सिक्योर्ड 90 plus in 10th and 12th also, so what response did I get from my family? चाचू पापा सब लोग यही बोलते हैं कि तूने तो 3 बच्चों के नंबर ले लिए, 3 बच्चे इतने में पास हो जाते हैं. So that is a very fun sort of conversation, which basically reflects कि वो लोग इतना कभी भी मेरे को academics के लिए pressure नहीं करते हैं. But उनका pressure ना करना is a responsibility on me, कि अगर वो pressure नहीं करते हैं, so I would have to be accountable for what I am doing, for what I am studying, for how I am giving my results. तो ये एक बहुत important चीज है. ये मैं पूरी family का as in a मेला लेके चल रही हूँ. Coming to my mother, she's a very spiritual lady, and she always says to me कि कुछ भी लाइफ में कैरी फॉरवर्ड करो ना करो, अपने मॉरल्स एंड अपने एथिक्स हमेशा कैरी फॉरवर्ड करो. एंड वो कैसे आएंगे? वो आपको स्पिरिचुअलिटी से जुड़ के आएंगे. शी इज डूइंग ग्रेट योगा, शी इज इनटू मेडिटेशन, शी इज इनटू रीडिंग स्पिरिचुअल बुक्स, एंड वो मुझे भी कहती हैं. एंड शी वाज द वन हु मेड मी रीड गीता. शी गॉट मी अ ट्रांसलेशन इन इंग्लिश, क्योंकि हिंदी में मुझे प्रॉब्लम आ रही थी पढ़ने में कि इसमें कुछ संस्कृत के श्लोक भी हैं, एंड आई डिडंट रीड संस्कृत इन माय स्कूल. And I got to know from ma'am कि KPS में संस्कृत भी है, so that's a very great initiative towards learning our roots. तो अगर आप में से भी कुछ बच्चे पढ़ रहे हैं, how many of you do have Sanskrit? 9 days. Okay, till 8th you've studied. तो वो जो आपका एक बेस बन जाता है that you can basically use in reading spiritual books and all. And it is not like कि आपको कोई एक बुक पकड़नी है, you can basically choose any की तरफ incline कराने की कोशिश करते हैं वो. Brain and body coordination, and I would say that कि I'm not very consistent at it. Physical activity मेरी इतनी नहीं है, so which is a shortcoming in my part. लेकिन I would encourage you all कि आप लोग sports करें, आप लोग physical activities करें. And coming to my father is the one जिनके साथ मैं हर टाइप की कॉन्वर्सेशन कर सकती हूँ बेस्ड ऑन माई अकेडमिक्स. अगर मैं कुछ आर्टिकल्स लिख रही हूँ, कुछ मुझे आइडिया चाहिए, एनीथिंग एंड एवरीथिंग वी कैन डिस्कस. एंड एक हमारा लाइक अनसेड रूल है फैमिली में कि हम रोज आधे घंटे से लेके 1 घंटे तक बैठते ही बैठते थे. सो बेस्ड ऑन टाइम कि अगर नहीं है टाइम तो 10-15 मिनट बैठे. बट देयर आर राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस, आप लोगों ने सुना होगा, फॉर्मली होती है. फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, फ्रीडम स्ट्रगल के टाइम का सुना है आप लोगों ने? तो उस तरीके से हम लोग ऐसे जोकिंगली बोलते थे दैट वी आर हैविंग स्क्वायर बेड कॉन्फ्रेंस, लाइक 4 of us are sitting and we are discussing कि आज पूरे दिन में क्या हुआ and all of that. So I think that was one of the most beautiful part of the day. And उससे एक तो ये होता है कि हमें ideas share करने को मिलते हैं, and secondly हम अपने parents के साथ comfortable होते हैं. So जो एक generational gap है वो भी कहीं ना कहीं कम होता है. So I would say कि मेरी family ने मुझे हर चीज में support करा है, and the conversational gap जो usually parents and बच्चों में होता है, that we don't have. अगर मैं कहीं बाहर भी जा रही हूँ, now I'm in Delhi, तो हमारी तो भी आधा घंटा बात होती है, चाहे कॉन्फ्रेंस में हो जाए. सो दैट इज नॉन नेगोशिएबल. पूरा दिन में चाहे बात नहीं करेंगे, वो आधा घंटा वी विल गिव. सो उससे एक तो फैमिली के साथ आपका बॉन्ड अच्छा रहता है, एंड सेकेंडली यू टेंड टू रिमूव द कम्युनिकेशन गैप जो यूजुअली आजकल जेन जी जनरेशन में अपने पेरेंट्स के साथ काफी ज्यादा बढ़ रहा है. Tashi, as we have talked about your family, your academics, now I would like you to share with these students what other things you have participated in, like being head girl of your school, how you manage your times and studies and all the responsibilities a head girl has to serve, and also about your writings and being a part of Daily Dugar Students Association. I would like you to share your life being part of all those things in your own words. जो हम अपना 1-2 एग्जाम लिखते हैं, वी गेट माइंड आई वांट टू बी अ जर्नलिस्ट. सो आई लुक्ड आउट फॉर अपॉर्चुनिटीज जो मेरे इंटरेस्ट को अलाइन करती है. यू कैन लुक फॉर एन अपॉर्चुनिटी जो आपके इंटरेस्ट को अलाइन करती है. इफ समवन इज गुड एट पेंटिंग, इफ समवन इज गुड एट थिएटर, obviously I'm not the best person who can tell you कि आपको उसमें क्या करना चाहिए. You would have to look for your own opportunities. But yes, based on my field, which is reading, writing and media, so I would say that कि आपने सबसे पहले तो अपना
एक लिस्ट बनानी है that what all I can do other than academics. So as ma'am said that you were serving as head girl. So yes, that was a responsibility indeed. And with any power, with great power comes great responsibility. Spider-Man का सुना होगा आप लोगों ने. So that is what I want to say कि अगर आपको कोई prestige मिलता है, आपको कोई responsibility मिलती है, so वो आपको एक power मिल रही है, but उसके साथ आपको serve भी करना है. You have to be accountable. So I would say कि जो school life थी वो तो like school time में खत्म हो जाता है. Like being in head girl काफी सारे events में हमें present करना है. We are going for interactions. And I think school का कोई ऐसा event नहीं है जो मैंने miss करा हो 9th onwards, 9th, 10th, 11th, 12th. And I was most active in school events in senior secondary, which is 11th, 12th. जब बच्चे सबसे ज्यादा कम कर देते हैं ऐसे events में participation because they think कि अब coaching लेनी है, now we have to focus on boards. लेकिन I was most active in those 2 years only. And रही बात writing की and giving time for all those things, yes. Studies जो अपना academics है स्कूल की पढ़ाई, that is non-negotiable. जब board exams थे for 3 months I didn't write, I didn't do anything extra. लेकिन हाँ उससे पहले whenever I could continue तो मैं जरूर करती थी because हमारे पास ऐसा नहीं है कि टाइम नहीं होता है. We have a lot of time. हमारे पास स्टूडेंट लाइफ में सबसे बड़ा लेवरेज ही है कि पढ़ाई के अलावा और कोई काम ही नहीं है एज इन. तो उस इंटर्सेस को हम इस तरीके से यूज कर सकते हैं कि जो भी आपके पास टाइम बचता है उसमें यू मेक श्योर कि आपका थॉट प्रोसेस चल रहा है. इवन इफ आई एम सिटिंग हियर, मुझे आपसे कोई कॉन्वर्सेशन होती है, आई गेट एन आइडिया, सो आई वुड मेक श्योर कि मैं उसको याद रखूं कल को अगर मुझे कभी काम आए. सो इट्स ऑलवेज गुड टू हैव अ पेपर एंड पेन विद यू. कभी किसी का कोई आइडिया अच्छा लगे सो यू कैन जॉट इट डाउन. फॉर एनी सेशंस फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स आई वुड से कि अगर कोई भी गेस्ट आता है या एनी स्पीकर इज कमिंग, सो कम विद अ पेपर एंड अ पेन. सो अगर आपको उन्होंने 100 बातें बोली, अगर उसमें से एक भी अच्छी लगती है, यू कैन बेसिकली नोट इट डाउन. बिकॉज शॉर्ट टर्म में तो हमें लगता है कि हम सब चीजें याद रख लेंगे, बट लॉन्ग रन में वो याद नहीं रहता है अपेरेंटली, एंड दैट्स ह्यूमन माइंड. सो आई वुड से दैट कि बाकी जो एक्टिविटीज थी, चाहे वो राइटिंग हो, चाहे वो स्कूल का रिस्पॉन्सिबिलिटी हो एज एन हेड गर्ल, वो सब चलता है, बट दैट इज सेकेंडरी टू एकेडमिक्स. लेकिन हाँ उसको भी कभी साइडलाइन नहीं करना है. अगर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है सो यू वुड हैव टू लुक अपॉन इट. And right now I'm serving as the PR head at Delhi Duggar Student Association. So I would want to talk about that too. अभी तो मेरा college initially start ही हुआ है. I have a lot of another things coming in. So next time when we interact, maybe वो चीजें भी align हो जाए. So for now I would say that कि हाँ हम लोग modernize हो रहे हैं, हम लोग technology का use कर रहे हैं. We are using AI. We are speaking in English, speaking in Hindi. ये सब तो चल रहा है. But उसके अलावा it's very important to stay close to our roots. So that was my calling towards joining Delhi Duggar Student Association. You can see their Instagram handle अगर आप में से कोई Instagram पे है तो. And today in fact we got कठुआ का feature on it. So that is something really sweet. So उसमें अभी I'm serving as PR head and there are another opportunities in college too. But हाँ again वही चीज एक basic से align होती है. Framework is the same कि academics को you have to prioritize. उसके अलावा other things that you can do to build your social circle, to build your communication skills, to build your networking, that is all really great. क्योंकि कल को career में आपको सिर्फ आपकी पढ़ाई help नहीं करेगी, these things will also help. So these are called as soft skills जो आपको इन सब activities से develop होती है. Thank you. You also serve as media and PR head of Delhi Duggar Association. What has this experience taught you about communication and leadership? Okay, so firstly, I would like to acknowledge the fact that I've been part of this post from just 15 to 20 days so far, and writing and speaking was always my thing, but PR is something very new to me. आप में से कितने लोग PR जानते हैं? Public relations. Okay, so whenever we are doing an event, या हम कुछ भी cultural performance कर रहे हैं, we're doing anything. Coming back to point, PR we were talking about. So it's public relations. ये मेरे लिए भी एक new field है, field of scope है. But PR and communication are very much related. अब इसमें हमें basically क्या करना होता है? Sponsors cater करने होते हैं. We have to look for people who can be in our guest panel and all. So that's what we are doing. And ये सब
चीजें कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन स्किल्स, नेटवर्किंग स्किल्स एंड ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट, जिसे हम इन शॉर्ट सॉफ्ट स्किल्स बोल देते हैं, उसमें हेल्पफुल रहती है. सो दैट इज व्हाट आई वांटेड टू शेयर कि इस ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करने के 2 रीजन है. फर्स्टली कि चाहे मैं बाहर भी हूँ, चाहे मैं दिल्ली में भी हूँ, बट आई एम कनेक्टेड टू माई डोगरा रूट्स. एंड सेकेंडली मुझे सॉफ्ट स्किल्स काफी ज्यादा मिल रही हैं इससे. सो दैट्स व्हाट आई एम अप फॉर. एंड इस टाइप का आपको कोई भी अपॉर्चुनिटी मिलता है लेटर ऑन इन लाइफ, आप कॉलेज जाते हैं, आप 11th-12th में आते हैं, देयर आर मेनी मेनी अपॉर्चुनिटीज. आज की डेट में हम देखें ऑनलाइन काफी कुछ वी कैन एक्सपीरियंस. देन स्कूल हमें काफी कुछ ऑफर करता है, कॉलेज जिस भी हम इंस्टीट्यूशन में पढ़ रहे हैं, दे आर ऑफरिंग अस ग्रेट अपॉर्चुनिटीज. सो नेवर लेट दैट गो. अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं, आपको नहीं पता कि आपकी कॉलिंग क्या है, आप किस में बेस्ट है, सो ट्राई डिफरेंट थिंग्स एंड देन अपना एक कोई फील्ड पकड़ लो जिसमें यू वुड वांट टू स्पेशलाइज. So now we are going to open the floor for the students. If any one of you wants to ask any question to Tashi, you can just raise your hand and ask your question. Okay, Pari can ask your question. What it is? Hi. Now my question to you is that how did you balance your academics with competitions, MUNs, writing, and most importantly, your responsibility as a head girl in the school? Thanks, Pari, for your question. First of all, I would want to say that I'm not ma'am. Didi bolo, I'm just like 1 or 2 years older than you. And your question is great. So I would want to say that कि सबसे पहले तो you would have to basically figure out कि सबके पास 24 ही घंटे हैं, and those who are working best out of best in those 24 hours, उनके पास ऐसा तो नहीं है that they have an additional hour. So we all have same time. ये एक सबसे बड़ी यूनिफॉर्मिटी है in the humanity. So I would say that कि उस टाइम का बेस्ट यूटिलाइज करना है. आज की डेट में डिस्ट्रैक्शंस बहुत हैं, सो जस्ट ट्राई कि आपके जो डिस्ट्रैक्शन भी है, लाइक सोशल मीडिया है, इट्स वन ऑफ द बिगेस्ट डिस्ट्रैक्शंस, उसको आप किस तरीके से कंस्ट्रक्टिवली यूज कर सकते हो अपने काम के लिए, अपनी नेटवर्किंग के लिए, टू गेट इनटू टच विद गुड पीपल. सो दैट इज व्हाट आई वांट टू से, दैट कि सबसे पहले डिस्ट्रैक्शंस को साइडलाइन करो एंड यू वुड सी कि आपके पास एम्पल टाइम है, क्योंकि पढ़ने के सिवाय एज एन स्टूडेंट लाइफ में हमारे पास और क्या काम है, there's nothing as such. So जो competitions हैं, MUNs हो गए, debating हो गया, या writing हो गया, या even a responsibility as a head girl. So all these things are obviously secondary to academics, लेकिन they are as important as academics and उनको साथ में balance करके चलना बहुत जरूरी है. Yes, if I have a test, if I have a deadline, so I would always prioritize that test or an assignment over writing for a newspaper. लेकिन अगर वो नहीं है, if I'm free on a Sunday, so why don't I use that time for writing or doing something. ऐसा भी नहीं है that you have to put enjoyment on stake. ऐसा नहीं है बाहर नहीं जाना या फिर उन सब चीजों को totally compromise कर देना है. No, but you would have to see कि आपको किस तरीके से टाइम को बैलेंस करके चलना है. And it's always about deadlines. If I know I have a history test tomorrow, why would I write for newspaper today? I would obviously prepare for my test. तो वो आपकी priorities हैं, वो short term में long term में change होती रहती है. एंड हमेशा बिल्कुल शॉर्ट टर्म की प्रायोरिटीज को लेकर चलो एंड यू वुड डू द बेस्ट. राइट डाउन योर गोल्स फॉर द डे एंड उस हिसाब से देखो कि व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क जो कि मुझे करना है, जो कि नॉन नेगोशिएबल है, जिसको मैं नहीं छोड़ सकता हूँ या छोड़ सकती हूँ, तो उसको आप सबसे पहले कंप्लीट कर लें एंड जो बचा हुआ टाइम है यू कैन डिवोट टू वेरियस एक्टिविटीज दैट कैन रियली हेल्प यू. थैंक यू. आई होप दैट क्लियर्स योर क्वेरी. Anyone else? Okay, go Mahi. My question to you is, how did you develop your confidence to speak up on stage and represent your school? Thanks, Suhani, for your question. I would say that confidence is something that you build up conversation by conversation. अभी आपने यहाँ पे जो एक क्वेश्चन पूछा है, you've asked it among like 30-40 other students sitting here. तो आपने जो बाकियों ने जिन्होंने नहीं पूछा है, आपने उनसे तो एक स्टेप ज्यादा ही लिया ना. सो दिस इज अ स्टेप टुवर्ड्स बिल्डिंग कॉन्फिडेंस एंड ऐसे ही धीरे धीरे जब आप स्टेप्स लोगे, सो दैट वुड अपेरेंटली एड अप. एंड रही बात कॉन्फिडेंस की, सो इट इज नॉट अ वन डे थिंग कि आपको एक दिन में कॉन्फिडेंस आ जाएगा. व्हेन यू वुड कम अप, जब आप शो अप करोगे फॉर अपॉर्चुनिटीज, फॉर स्पीकिंग, फॉर टॉकिंग टू पीपल, yes, you will be wrong many times. कई बार ऐसा होगा कि yes, I didn't do my best,
लेकिन दैट्स एब्सोल्युटली फाइन. स्टूडेंट लाइफ या फिर ये जो अभी यंग स्टेज है, दिस इज टाइम फॉर लर्निंग. अभी हम एरर्स कर सकते हैं, नोबडी विल जज अस. लेकिन यही एरर्स अगर हम 10 साल बाद करेंगे, सो देयर विल बी people looking at us with the judging eye. And it is absolutely okay to be judged. कई बार हम गलत बोलेंगे, कई बार हम फंबल करेंगे, उससे नहीं डरना है. There's no opportunity cost of this. कि ठीक है, हमें नहीं डरना है. If I want to show up, अगर मेरे दिमाग में कुछ है, so I would ask that. I would be the dumbest in the room for a second, ताकि मैं later on dumb feel ना करूं. So that is something very important. कि कई बार अगर लगता है कि मैंने जो पूछा है, मैंने जो बोला है, if I'm speaking here, इसकी कोई सेंस नहीं बनी, but it's fine, I did it. At least I tried. So later on वो चीजें add up होंगी. So step by step you build your confidence. It's not a one day thing. So as you encourage your participations, आप टीचर्स से क्वेश्चंस पूछेंगे, आप इंटरेक्टिव सेशंस का पार्ट बनेंगे. So that would apparently give you great results. Hope that answers all yours. Any other student? Okay, Igjot. Hello, I'm Justin from class 10, and my question to you is that what were you most nervous and excited about in university? Okay, thanks Igjot for your question. You may have a seat. Thank you. So I would say that I revoked St. Xavier's, which is one of the best colleges for media, which is in Mumbai, because I wanted to continue my graduation in Delhi. So Delhi University was skeptical till last, क्योंकि मैंने उसका भी second option बना के रखा था, because these days after CUET it's not just about your score. जब पहले merit based admission होता था 12th के merit पे, so it was fine कि इस college कितनी cut off जा रही है, if you match it तो आप उसका part बन जाएंगे, if you don't match it तो then you look for college जो थोड़ा downgrade है. But जब से CUET आया है, it's not just about merit, it is more about कि आप कैसी preference sheet fill करते हैं, किस type के combinations डालते हैं. So all those things add up in the long run. तो end तक मुझे यही था कि पता नहीं होगा भी या नहीं होगा. And so that was the most nervous clause कि पता ही नहीं है that अभी second round आने वाला है, so will I get into a college. Plus Delhi University has more than 80 colleges I think, and उसमें से 15-20 are the ones which are like worth going. जो north and south campus आप लोगों ने सुना होगा. So I wanted कि अगर मेरा north या south में होता है, then only I'll take Delhi University. Otherwise, I would look for my backup option. So that was the most nervous thing. रही बात exciting thing की, so Delhi University has so much to offer as an institution. जैसे हम स्कूल में MUNs कर रहे हैं या debates कर रहे हैं, competitions हो रहे हैं, Delhi University has all of that in a very large scale. So every school has a debating society. Every college has a debating society. They have MUN societies. They have theatre societies. तो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज बहुत ज्यादा है दिल्ली यूनिवर्सिटी में. देयर इज स्टूडेंट एक्टिविज्म इन दिल्ली यूनिवर्सिटी. द एकेडमिक्स आर टॉप नॉच. प्लस देयर आर मेनी करियर ऑप्शंस जैसे प्राइवेट डेलीगेशंस एंड ऑल. आप लोगों ने सुना होगा कि एक तो यूपीएससी क्लियर करके IFS बनते हैं, इंडियन फॉरेन सर्विस. सो दे गो इनटू पब्लिक पॉलिसी, इंटरनेशनल रिलेशंस. उसके अलावा भी देयर इज अ वे टू जॉइन पब्लिक पॉलिसी एंड इंटरनेशनल रिलेशंस, दैट इज थ्रू प्राइवेट डेलीगेशंस. तो उन सबके जो सर्किट्स हैं, नेटवर्क्स हैं, दैट आर ऑपरेटेड फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी प्राइमरीली. सो यू गेट अ लॉट ऑफ एक्सपोजर देयर. मतलब ऐसा नहीं है कि किसी और यूनिवर्सिटी का बच्चा उन सब चीजों में नहीं जा सकता, बट जितनी अपॉर्चुनिटी आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी ऑफर करेगा इन सब चीजों की, देयर माइट बी अ केस कि दूसरी कोई यूनिवर्सिटी इतना ऑफर ना करे. सो दैट इज द मोस्ट एक्साइटिंग पार्ट दैट आई वुड बी coming up with more and more events. There are many opportunities lined up. And academics to Delhi University is great for humanities and commerce. So students here who are basically thinking to opt humanities and commerce, you can look for Delhi University as your potential option. Any other student? Basuni. What's her name? Basuni. My question to you is, what inspired you to start writing newspapers at such a young age? So Basuni, thanks for your question. You may have your seat. So as I previously mentioned too, that I saw a podcast of Miss Palki Sharma Upadhyay. She is one of the best journalists, and all of you guys please search about her. You would love watching her show. She's basically started a new venture now, which is India Global Review. That's her new channel which she's working in. So in her podcast, she was been asked कि आपने कैसे start किया था. तो there she said कि मैं अपने time पे when she was in college, she has also studied from Hindu College in Delhi University.
So when she was in college, she used to say कि मैं pieces लिखती थी and then I used to drop them in the office of editor. And there are two kinds of news basically. I would tell this for a basic idea. Soft news and hard news. Hard news is the one like economic, political. Soft news is like entertainment, sports. So she used to say कि मैं hard news लिखती थी, मैंने कोई geopolitical issue पे लिखा, that never used to get published. फिर मुझे editor बोलते थे, okay, you write on Dandiya night in this particular area. So that is a very soft news. मतलब ऐसी news है जिसका इतना कोई impact नहीं है, but fine, columns में तो जाना ही है, हर type की news becomes part of newspaper. So then she used to write that. So वहां से मुझे एक बेसिक आइडिया आया कि अगर वो अपने टाइम पे एडिटर्स के ऑफिस में जाके अपने पीसेस को ड्रॉप कर सकते हैं, तो व्हाई कांट आई जस्ट मेल आईडीज अवेलेबल है गूगल पे हर एक पब्लिकेशन की, हर एक एडिटर की. सो व्हाई कांट आई जस्ट सेंड माय वर्क. एंड व्हेन वी गाइस डू समथिंग लाइक दिस ना, जो कोल्ड कॉलिंग या कोल्ड मेलिंग का मैंने कॉन्सेप्ट बताया, उसमें रिजेक्शन रेट इज वेरी हाई. तो आपको बहुत हाई एक्सपेक्टेशंस लेके ये सब नहीं करना है. बट व्हेन इट हैपेंस, व्हेन इट रेसिप्रोकेट्स, तो आपका एक नेटवर्क बन जाएगा, आपका एक कॉन्टैक्ट बन जाएगा, एंड लेटर ऑन आप काफी अच्छे से उनके साथ काम कर सकते हैं. सो आई वुड से दैट कि उनका वो जो एक मैंने सुना था, वहीं से मुझे एक बेसिक इनिशिएशन आया. हाँ, उससे पहले आई वाज डूइंग एसे राइटिंग कॉम्पिटिशंस एंड वेरियस राइटिंग कॉम्पिटिशंस इन माय स्कूल. तो एक वो राइटिंग का बेस तो था, बट उसको फॉर्मली रेसिप्रोकेट करना फॉर न्यूज़पेपर्स, दैट इज व्हाट, जो कि मुझे वहां से आइडिया स्ट्रक हुआ. एंड इससे ये भी सीख है कि हम लोग कहीं से कोई भी आइडिया मिल सकता है, हम किसी भी चीज को अगर पिकअप कर ले, सो दैट कैन चेंज आवर लाइफ फॉर नेक्स्ट फ्यू इयर्स और फ्यू मंथ्स. सो दैट इज व्हाट आई वुड वांट टू से कि वहां से मेरा इनिशिएशन हुआ. Any other student who wants to ask in Jivika? My name is Jyotika. I'm from class 10. So my question is, what advice would you give to those students who are average in studies but doing weak for achieving something during life? So Jivika, your question is great. You can have a seat. So I would say that there's nobody average in studies. Performing well in academics हम सबका goal होता है, but there's no one average. हमारे concepts clear होने चाहिए at the end of the day. And अगर 100 में से 80 भी आ रहे हैं, 70 भी आ रहे हैं, it doesn't make a big time difference, I would say. अगर आपका concept clear है, if you have real life skills, मतलब there are students, there are people who score like 100 on 100, but then they have no real life skills. So how would you perform in job? There's nobody gonna look at your unit test कि आपके हाँ फलानी डेट को इस यूनिट टेस्ट में पूरे मार्क्स आए थे. So being average in studies is a no concept. आपको overall हर चीज को बैलेंस करके चलना है. अगर आप किसी एक सब्जेक्ट में थोड़ा सा लैक करते हैं, so you obviously have to work on it, but you can compensate it with another subject. उसके अलावा there are many other things that you can do side by side, जिससे कभी भी आपको ये ना लगे कि मैं इस चीज में थोड़ा पीछे रहा तो उसके कारण मेरी ओवरऑल डेवलपमेंट कम हुई. और ऐसा होता भी नहीं है. इट इज फाइन अगर 7 सब्जेक्ट्स हैं, किसी एक में थोड़ा एवरेज होना, but then you can compensate it with other 6 subjects या other activities that you do. तो long run में academics हाँ काम आते हैं, ऐसा नहीं है कि you don't have to study, ये सब चीजें आपको काम आएंगी, but it is more of like कि there are other skills also. So real life practical skills भी आप साथ में initiate करें, and then overall as a whole that would help you. Thank you. Anyone else? Kanish? Kanish. Very good afternoon. Okay. Thanks, Kanish, for your question. So you may have a seat. So basically, I would say that humanities and social sciences was my calling. And sitting here and right now saying that what I would choose would be very unfair to what I let go. So there's this author called Sylvia Plath. She basically in her book called The Bell Jar shared that there's a fig tree analogy. कि अगर हम एक फिग के पेड़ के नीचे बैठे हैं, फिग आप लोग सब समझते हो, अंजीर के पेड़ के नीचे बैठे हैं, अंजीर बड़ी जल्दी पक जाती है. So there would be figs जो बड़ी जल्दी उससे गिरने शुरू हो जाएंगी. And she basically gave a concept that some figs have to rot. So this proverb basically means कि अगर हमें कोई एक चीज करनी है, उसके लिए हमें कोई दूसरी चीज जो हमें बहुत पसंद है उसको let go
करना पड़ सकता है. So that is what I want to say. Yes, I would do my undergrad in philosophy as my major and journalism or political science as my minor. And then later on, all these things are very much interrelated. इसके लिए आपको जो base चाहिए, that is quite similar. So public policy, civil services, that is obviously my option. But then I have a plan B of journalism. And even if I do public policy, civil services, I can continue my writings and I can be in panel debates and all. So that is something that I can do hand in hand. Yes, I cannot be a full-time journalist indeed, but the knowledge and the skill set that we need for both the things are quite similar, I would say. So that's why it is not fair to choose one at this point of time, because honestly telling, I'm just 1-2 years senior than you. I'm also figuring out my life same as you. So let's see how we go 5 years down the line. Thank you so much, Tashi. Yes. I guess most of you have got your answers because she has answered all your questions really beautifully and honestly. So Tashi, now not taking longer time, my last question for you is, we all are living in an era where social media really plays an important role in our lives. And I would like you to share with these students how they can make best use out of it. Okay, so we all are Gen Zs and these days saying that कि हम social media से totally cut off रहेंगे, it's something very utopian. Utopian समझते हो ऐसे मतलब कि बिल्कुल राम राज्य वाली बात है कि हम social media use ही नहीं करेंगे या हम तो बिल्कुल distracted ही नहीं है. This is something very hypothetical कि मतलब possible ही नहीं है आजकल की date में. I would say कि मेरा 12th तक कोई Instagram account नहीं था, कुछ नहीं था. School time में तो I wasn't in social media, but when I got into social media, I tried कि मैं उसका best of best use करूँ to network with people. Honestly telling, I've met 2-3 great journalists in Delhi who have guided me regarding the field, been very kind enough to have a word with me, and हम लोग मिले भी physically offline. So I would say that कि वो सब initiation हुआ through cold messaging via social media. Otherwise, how would I get a contact with someone who's working in Aaj Tak, who's working in Times Now? And I got that through social media. And यही है कि आप social media को किस तरीके से best तरीके से use करते हो. So there are a lot of distractions, but social media can be a blessing too. News के लिए it's one of the best sources. When you open your Instagram, आपकी feed, आपका algorithm कुछ इस type का हो that you get best of best on it. आपको पता चल जाएगी कहाँ पे क्या न्यूज हो रही है, क्या हैपनिंग हो रही है. So you don't stay alien with the world, but also you don't waste time on social media with brain rot content. So that is what I want to say कि totally तो आप उसको sideline नहीं कर सकते. अभी तो 9-10 graders हो आप लोग, अभी तो it's not like advisable to be on social media. How many of you are on Instagram or any sort of social media? कोई भी नहीं है. Everybody is. Everyone. सबके फेक अकाउंट है इसका मतलब. अच्छा कोई भी नहीं है सोशल मीडिया पे. दिस इज वेरी स्ट्रेंज एंड नॉट पॉसिबल. मतलब बता दो, आई एम ऑन सोशल मीडिया. हाउ मेनी ऑफ यू आर? अरे देयर इज नो शेम, कोई गलत बात थोड़ी है. अच्छा कोई भी नहीं है. इट्स नॉट एन ऑफेंस इंडीड. So social media is one of the best platforms जो आज की generation को मिला है. It's a blessing to network with people, to share your ideas, to communicate. But also अगर आप उसे गलत तरीके से use करते हो, you are basically stalking people or you are consuming brain rot content. आप reels के cycle में, algorithms में इतना ज़्यादा फंस चुके हो that you can't get out of it. आपका हाथ ही phone पे जाता है, you open your social media and you start scrolling. So that is the wrong part. But the positives that I've told you, that can really help you build something from social media. And आजकल तो social media and influencing is also a career option. So that is something if you're interested in, you can look up to. And social media is the best like place to network with people जो आपकी league में नहीं भी हैं. You never know them, you can never meet them otherwise. उनको भी आप social media से मिल सकते हो. So that is something I would want to say. And रही बात, you can basically set timers कि मेरे को 15 मिनट ही यूज करना है, आधा घंटा यूज करना है. Like my Instagram has half an hour का timer. Half an hour के बाद it itself gets logged. And वो half an hour पूरा नहीं हो पाता है पूरा दिन में. So that's what I want to say कि
कि अपना एक तो टाइम डिवोट ज्यादा ना करें, एंड जितना आप टाइम डिवोट करते हैं उसमें यू कैन बेसिकली मेक बेस्ट यूज आउट ऑफ सोशल मीडिया. एंड प्लीज ये ब्रेन रॉट कंटेंट एंड रील्स स्क्रोलिंग के आइडिलेशन में आप ना पड़े, सो दैट कुड बी बेस्ट. एंड अगर अभी भी आपका सोशल मीडिया है तो आई वुड से कि उसको कम से कम यूज करो, बट अदरवाइज आफ्टर 12th you can basically make your handle. That's what I recommend on the personal end, but yeah, it varies from person to person. Thank you so much, Tashi. Oh, yes, ma'am. Now I would like to call on stage Mahi to express her thoughts, how was her experience and what she learned, and pay her. So please welcome her with a big round of applause. So, first of all, I want to thank you. yes. आपके रिव्यूज जो भी हैं, आपके एक्सपीरियंसेस जो भी हैं, आई लर्न अ लॉट. और आपके जो स्ट्रगल्स हैं, आपके जो एक्सपीरियंसेस हैं, पर्सनली आई लर्न फ्रॉम दैट. एंड मैं यही विश करूँगी कि 100% ना सही बट 20-30% आप सबको भी समझ आई होगी, एंड you may apply on your life. And I just want to say that the last thing that you said, that social media is the evil of your life. I just want to say that it is an organ of your body. Very good. So आप जितना उसको यूज करेंगे, you more get into it. You more addicted to it. So I just want to say that use your phone as much as you can. And I personally learned a lot from you. And I just want to thank you that जो चीजें आपने बोली हैं, मैं आप सभी अप्लाई करें. I also definitely. Thank you so much. Wonderful. Thank you so much, Mahi. Now I would like to call Ikjot on stage. Please welcome him with a huge round of applause. Everyone, I learned very new things and very important things from this session. जो कि मैं ट्राई करूँगा अपनी आगे की लाइफ में इम्प्लीमेंट करने के लिए. And I want to thank you for this wonderful session. Oh, yes. Thank you so much, Ikjot. Tashi, your journey beautifully proves that success is not measured just by grades, but it is measured by the character, leadership, curiosity, and willingness to make positive difference to the society. On the behalf of our chairman sir, principal ma'am, vice principal ma'am, teachers and students, I thank you for coming here and joining us and sharing your thoughts and inspiring story with us. We wish you a successful journey ahead. May you continue to make Kathua and your family proud and inspire young minds like them. Now I would like to call Chairman Sir to share his words with us. कैसा लगा बच्चों आपको आज का सेशन? मैंने ये हमारी बेटी है, इतनी सी थी जब मैंने इसको देखा था. जब हम गाड़ी चलाते हैं ना, एक टर्न आता है, तब हम सोचते हैं कि लेफ्ट जाना है या राइट जाना है. वो डिसीजन वेरी इंपॉर्टेंट है. इनकी लाइफ में जब जब टर्न आए तो इसने डिसीजन लिया गलत कौन सा और ठीक कौन सा है. अगर ये गलत पे चली जाती तो आज यहाँ ऐसे ना बैठी, इसको स्ट्रगल करनी पड़नी थी. वो कितना दूर, 1 मिनट की गलती के लिए हमें लेकिन कितने दिन हमारे देश से. तो आपने डिसीजन जब लेना दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट.
जो लेते हो, सुबह उठते हो, क्या डिसीजन लेते हो, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। कोशिश करो कि जब आप सुबह उठते हो, आज का दिन का जो प्लान करते हो, उसमें मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए। अगर करोगे तो उसके लिए आपको पे भी करना पड़ेगा। तो जो बच्चे मिस्टेक्स नहीं करते हैं वो वैसे बनते हैं, जो करते हैं वो आप रोज देखते हो, न्यूज़ में देखते हो, हर जगह देखते हो, हर एक जगह आपको बच्चे मिलेंगे। होपफुली हमारी बेटी जैसी चल रही है, इसके अच्छे गाइडेंस के पास, इसके पेरेंट्स हैं, इसके टीचर हैं, अब ये सोसाइटी में आती है, सोसाइटी में भी उसको बड़े सारे रास्ते मिलेंगे, यहाँ पे डर होगा। तो मुझे लगता है कि इतनी वेल ट्रेन हो गई है कि अब इसको किसी सहारे की जरूरत नहीं कर देंगे। शी विल डू बेस्ट। हम चाहेंगे ये सब सोच रही है जैसी बने तो इसको कामयाबी मिले। अगर वो कामयाबी नहीं मिलती है, मेरे लिए तो ये 100% जैसी है, मेरे को हमारी बेटी है, ये दुनिया में कभी भी मार नहीं पाएगी। इसको आप गलत रास्ते में भी छोड़ाओगे ना, ये खुद से ऑटोमेटिकली वहाँ पहुँच जाएगी, यहाँ रहेगी। तो इसके आने वाले जो ड्रीम्स हैं ये फुलफिल होंगे और दोबारा हम जल्दी तब आप बर्थ में होंगे, तो आप किसी के ड्रीम ठीक कर सकते हो। मैंने आपसे पहले जब बात कर रहा था, आपके बाद जो जनरेशन आएगी तो फास्ट होगी। हमें पता नहीं था ये कंप्यूटर क्या होता है। मैंने बताया ना, जब मैं लेटर लिखता तो मुझे 1 घंटा लगता था। ये कह रही है कि ये अपने हिसाब से सोच रही है कि ईमेल इतनी एडवांस नहीं होती थी। हमारा जनरेशन में कितना गया था, हमें 1 पेज लिखने के लिए 1 घंटा चाहिए, तो पहले टीचर चाहिए। इनकी जनरेशन में क्या था कि ईमेल के लिए मुझे बाहर जाना पड़ता था। आपकी जनरेशन में क्या है, आपको उसे बोलना है कि भाई ये चीज़ें मुझे दे दो तो ऑलरेडी आपको मिल जाएगी। अब बहुत ज़्यादा एडवांस तरीके से जब गाड़ी हम चलाते हैं ना, तो पहले कितनी स्पीड होती है, 10, 20, जब 100 पे पहुंच जाती है ना, उसकी इतनी स्पीड हो जाती है कि 120, 100, 140 जैसी करती है। तो आप 100 की स्पीड में लाइफ जी रहे हो। जब हम थे, आप फर्स्ट गियर में 10 की स्पीड में चलते थे। ये वाली जनरेशन आ गई 60, आप 100 प्लस चल रहे हो। आपकी माइनर मिस्टेक क्या करेगी, बड़ा ब्लास्ट करेगी, गाड़ी के पकड़े पकड़े निकाल देगा। हमारी 10 की स्पीड से होगा तो थोड़ी सी, तो आपके पास गलती की गुंजाइश नहीं है। आप एक दिन वेस्ट करोगे तो 20 दिन पीछे चले जाओगे। हम एक दिन वेस्ट करते तो हमारे 10 दिन और आगे बढ़े होते थे। सो यू हैव लेस टाइम, क्योंकि आपके साथी आपसे बहुत तेज चलते हैं। आपकी गाड़ी 100 प्लस चल रही है, आपकी 10th क्लास 100 प्लस स्पीड से चल रही है। मेरी चल रही थी 20 के हिसाब से, इसकी चल रही थी 90 के हिसाब से। तो आप एक मिस्टेक बहुत ज़्यादा नुकसान देगी, ये चीज़ अपने माइंड में डालो। हम कोशिश करेंगे कि आने वाले दिनों में और सेशन ऐसे मिलते रहें ताकि आप एक्सीडेंट से बच सकें। बेटी का थैंक यू, आप बच्चों को थैंक यू, हमारी इंग्लिश मैम का थैंक यू, हमारी वाइस प्रिंसिपल मैम का थैंक यू, हमारा करतार पब्लिक स्कूल का थैंक यू, जिन्होंने हमें आज ऐसा माहौल दिया और बहुत कुछ सीखने को मिला। आप सबका थैंक यू। Thank you so much, sir. Now I would like to call Daman ma'am on stage. Mahi, Vidyut, Kanish, Jeevika, Pari, Basuni, please come and join us on the stage. मैंने आज जितना भी सेशन है ना, इसके लिए 2 दिन लगती है। इससे आपने सीखा वही देखा। आज मुझे लगता है इसमें दीदी को एक वर्ड दिया गया है, ऑर्गेनिक। वो हमारी बॉडी का पार्ट है, मुझे हम समझ आया। मैं बड़ी देर से सोच रहा था कि हम अपने मोबाइल को कैसे अपने साथ एक्सप्लेन करेंगे। इसी का बेस्ट, इसके अलावा कोई आंसर नहीं, कोई आंसर नहीं है। ये हमारा एक पार्ट बन गया हुआ है। आप इसको क्या खिलाते हो, कैसे रखते हो, इस डिपेंडेंट है, आपकी बॉडी को वैसे करते करेगा। इस बेटी से मैंने आज सीखा है, इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। 1-2 बार
have something for her. So I would request sir and ma'am to please present. ये जितने भी बच्चे बैठे हैं ना सबको रिप्रेजेंट कर रहे हैं सारे बच्चे। ये मत सोचना कि आप वहाँ पे बैठे हैं। अब स्पेस कम है इसलिए हमने सबको नहीं बुलाया। तो होपफुली ये दीदी को ज्वाइन करेंगे दोनों पास, ठीक है? Give a huge round of applause. I just don't hope, I know कि आज के सेशन में you people must have learned something. कम से कम एक कोई ऐसी बात तो होगी ही जो आप सब अपनी लाइफ में फॉलो करोगे. And I expect in future years I will be interviewing one of you here. So please, जो भी आज आपने सीखा है उसको अपनी लाइफ में अपनाओ और एक अच्छे